Dear students, we are going to start exercise 4a. Prove that 1 minus cos square theta is equal to sin square theta. So first of all, we would make a triangle. It is right angle triangle. ये आपका right angle triangle है. As you already know, it is 90 degree. Suppose that A, B and C. A, B and C, these are called vertex. इन्हें vertex कहा जाता है. Suppose that it is named as X and it is named as Y and its name is R. So using Pythagorean theorem, AC raised to the power 2 is equal to AB raised to the power 2 plus BC raised to the power 2 implies that R square is equal to AB Y square plus X square. Implies that you may also write R square is equal to X square plus Y square. The question is for LHS left hand side, that is 1 minus cos square theta. This will give cos theta is equal to base upon hypotenuse. Cos theta is equal to base upon hypotenuse. यहाँ पे सपोज दैट हियर इज थीटा, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है. जो लॉन्गेस्ट साइड दैट इज हाइपोटेनस इट डिनोटेड बाई आर एंड बी सी इज एक्स दैट इज बेस. तो बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज एक्स अपॉन आर कॉस थीटा. तो 1 माइनस cos square theta that is x by r raised to the power 2. This will give 1 minus x square upon r square. You will have to multiply by r square in 1. This will give r square minus x square upon r square. Putting the value of r, from here r square is equal to y square plus x square, that is r square is equal to x square plus y square. ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए. x square plus y square माइनस x square अपॉन r square. जो कैंसिल हो उसको कैंसिल कर दीजिए. द रिजल्ट इज व्हाट y square अपॉन r square. दिस इज द वैल्यू ऑफ LHS लेफ्ट हैंड साइड. Now you will have to solve RHS. The value of RHS is equal to sin square theta. You may write it in the form of sin theta raised to the power 2. Sin theta, as you already know, perpendicular upon hypotenuse. It is perpendicular and it is hypotenuse, that is y upon r. Y upon r raised to the power 2 equal, you may write y square upon r square. Here you see LHS is equal to RHS. LHS equal RHS. So it is proved 1 minus cos square theta equals sin square theta. 1 minus cos square theta equal sin square theta. This question can be solved by another method using formula. As you know, sin square theta plus cos square theta equals 1. Implies that sin square theta can be written as cos square theta. जब उधर जाएगा बच्चों 1 minus cos square theta. RHS लेफ्ट हैंड साइड में है बच्चों.
लेफ्ट हैंड साइड में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, implies that 1 minus cos square theta can be written as what? 1 minus sin square theta, implies that 1 minus 1 plus sin square theta, 1 से 1 कैंसिल हो गया, sin square theta, it is RHS. After that, question number 2, root 1 minus sin square theta is equal to cos theta. A, B and C. Here is theta. This is x. Suppose that, and this is y. It is x-axis and it is y-axis. It is horizontal line and it is vertical line. The longest side, which is named as y. Using Pythagorean theorem, as you know, AC raised to the power 2 equal AB raised to the power 2 plus BC raised to the power 2. The value of AC in the figure, that is hypotenuse, is y square, AB that is perpendicular, y square, plus BC that is base, x square. It is R. R square is equal to y square plus x square, implies that R square is equal to, you may write, x square plus y square. The value of LHS, root 1 minus sin square theta, root 1 minus sin square theta equal 1 minus sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. The perpendicular is y and the hypotenuse is r. 1 minus y upon r raised to the power 2. This will give root 1 minus y square upon r square. You will have to multiply by r square into 1. That is root r square minus y square upon r square. After simplifying, you will write r square minus y square upon r. The value of RHS is what? Cos theta. RHS. RHS is equal to cos theta. As you know, cos theta is equal to base upon hypotenuse. The value of base is x. Yes, the value of hypotenuse is r. X upon r. Yes, here we see that the value of LHS is root r square minus y square upon r, and the value of RHS is only x upon r. So you will have to simplify more the value of LHS. You already know the value of r square is equal to, the value of r square can be written as what? R square is equal to y square plus x square or x square plus y square. So you will have to put the value of r square, y square plus x square minus y square upon r. Here y square positive and y square negative. The final result of LHS is x upon r. So here we see that LHS is equal to RHS. LHS is equal to RHS. So root 1 minus sin square theta equal cos theta. Question number next, sec alpha root 1 minus sin square alpha is equal to 1. LHS equal sec alpha.
विद इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। प्रूव करना है बच्चों 1। तो यू ऑलरेडी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 implies that cos square theta can be written as what? Cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. Okay? Cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. In the form of alpha, you may write what? Cos square alpha is equal to 1 minus sin square alpha. अब 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह पे बच्चों क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो दिस विल गिव इम्प्लाइज दैट सेक अल्फ़ा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा रिटन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इम्प्लाइज दैट सेक अल्फ़ा रूट कॉस स्क्वायर अल्फ़ा विल बी व्हाट? कॉस अल्फ़ा। इम्प्लाइज दैट सेक अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं बच्चों 1 अपॉन कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा विल बी कैंसल। द रिजल्ट विल बी 1 इज इक्वल टू व्हाट? RHS. This question can also be solved by another method, that is with the help of Pythagorean theorem. ठीक है, whose base is right angle triangle से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बच्चों फार्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इम्प्लाई दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा। इसको आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को यानी LHS जो है बच्चों, LHS से इक्वल फैन ऑन कर दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैन बी रिटन एज व्हाट? टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है? ऑलरेडी टेन स्क्वायर थीटा। व्हेन यू विल डिवाइड बाय टेन स्क्वायर थीटा द रिजल्ट विल बी व्हाट? 1। इसको आप उस तरीके से भी लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन आप ऐसे लगाएंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। आप जैसे पहला दूसरा क्वेश्चन लगाया गया था उसकी हेल्प से भी आप लगा लीजिए, चेक कर लीजिए। सपोज दैट A, B and C, here is theta, its value is x and it is y and this is r. Suppose that, and r is equal to r square is equal to x square plus y square with the help of Pythagorean theorem. तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो पहला है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये दूसरे तरीके से मैं लगा रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि उसी का पार्ट है। तो सबसे पहले बच्चों याद रखिएगा कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है आपका x, हाइपोटेनस है आपका r, तो कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा इक्वल टू h अपॉन बी यानी दैट इज़ r अपॉन x। और टेन थीटा भी निकाल लीजिए, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका है बच्चों y और बेस आया आपका x। तो चलिए दिस विल गिव सेक थीटा की वैल्यू कितनी आई है? r बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, और नीचे टेन थीटा है,
tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। दिस विल गिव आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है आपका वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस विल गिव, बच्चों आपको मालूम है इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। बच्चों आपको मालूम है कि जब 4 क्वांटिटीज़ होती है 1 2 3 4, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दिस विल गिव आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या मिला, वाई स्क्वायर, ये है वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो पुट कर दीजिए। आर की जगह पे आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अब जो कैंसिल हो उसको कैंसिल कर दीजिए, ये इससे कैंसिल हुआ। द रिमाइंडर विल बी वॉट, वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर एच एस। कन्फर्म, आर एच एस, यस। मतलब इससे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ये क्या नाम है, बेसिक रूल है, लेकिन आप अगर इसको तैयार करेंगे तो ये आपके लिए काम आएगा, तो आप इसी पे फोकस करिए। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। चलिए एल एच एस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 0। अब देखो बच्चों, यहाँ पे अभी आपको बताया गया था, यहाँ पे क्या करिए, माइनस कॉमन ले लीजिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस, जब कॉमन लेंगे तो मिलेगा क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए दिमाग जो है बहुत तेज़ से चलाओ, हाँ तब भी हो जाएगा। दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपको मिला सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये इक्वल क्या हो जाएगा, 0। यही आर एच एस है। अगर ऐसे न सॉल्व करके, और इसका एक मेथड और है, कई मेथड हैं, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ज़रा सोचिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को आप कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जानते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। इसको आप टेन स्क्वायर थीटा, ये ऑलरेडी माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स व्हाट, 0 इक्वल आर एच एस। क्वेश्चन नंबर 6 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन दिस इक्वल टू, चलिए एल एच एस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 अपॉन, और सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये आपका माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए, आंसर विल बी व्हाट, 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू आर एच एस। कन्फर्म। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। सब बहुत ईजी है, सब क्वेश्चन फटाफट लगाइए। एल एच एस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों इसको कई तरीके से लगा सकते हो, ठीक है। 1 माइनस कॉमन ले लो, मिलेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, यानी इसमें 1 मिला, तो दिस विल गिव 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू व्हाट, आर एच एस। कन्फर्म। एक तरीका और है, और करके कैसे भी लगाइए, चलिए। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर है क्या, माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों इसको मैं दूसरे पेन से क्यों लिखा हूँ, बिकॉज ये हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज, इसको हम लिख सकते हैं व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू व्हाट, 0 इज इक्वल टू RHS। आप उससे भी लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, साइन पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। LHS साइन पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। लाना है क्या, नहीं, LHS लिखे हम। चलिए अब यहाँ पे देखिए व्हाट विल बी कॉमन इन दिस केस, कॉमन क्या होगा, इम्प्लाइज दैट साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हुआ, यस, द रिमाइंडर विल बी व्हाट, यहाँ पे मिला क्या, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या मिला, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कन्फर्म है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, उसी से डिवाइड करना पड़ता है। जब इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन पावर 4 की जगह पे पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो दिस विल गिव साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1, दिस विल गिव व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, साइन पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर। देखिए वेरी वेरी गुड क्वेश्चन ये भी है। LHS इज इक्वल टू साइन पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा। देखिए ज़रा सोचिए, आपको एक फार्मूला बताया गया है कि ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं क्या, a प्लस बी रेज टू द पावर 2। देखिए उसी से मिल जुला कि नहीं, उसी से मिला ये बीच में 2 है ना, ये 2 की जगह पे है। अब इसको क्या करिए कि इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कन्फर्म, प्लस उसको लिख दीजिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कन्फर्म, और इसको लिख दीजिए कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे, अच्छा को थीटा हो गया, सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। अब देखिए, अब क्या करिए, एकदम आसान तरीका, इसको और इसको पकड़ लीजिए और पकड़ के बोल दीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पूरे का ये होल स्क्वायर है। ठीक है, अब ऑलरेडी आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू व्हाट, RHS, कन्फर्म। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। कितने क्वेश्चन हैं, 25 है, मैं तो जानता था 11 है। LHS इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा विद इन ब्रैकेट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यस। चलिए अब क्या करना है, आपको फार्मूला अभी मैं लिखवाया हूँ कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसको भी कई तरीके से लगा सकते हैं। चलिए ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा को देखो मैं लिख रहा हूँ क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये माइनस आपका क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। ये इससे कैंसिल हुआ तो मिला क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, RHS। नाउ क्वेश्चन नंबर
12 sin theta into cosec theta tan theta cot theta is equal to this LHS equal sin theta into cos, ये क्या हो गया, sin थीटा इंटू कोसेक थीटा हो इंटू कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, साइन थीटा कोसेक थीटा टेन थीटा अपॉन है बच्चों, हैं ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको एक रूल बता रहा हूँ, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा ये क्या होता है, 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। याद रखिएगा, अपोजिट वाले अगर एक जगह इकट्ठा हो जाए, प्रोवाइडेड देयर मस्ट बी अ साइन ऑफ प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन बिटवीन देम। अपोजिट वाले, देखिए साइन थीटा कोसेक थीटा अपोजिट वाले हैं, वो एक जगह इकट्ठा हो गए, उनके बीच में इंटू का निशान है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, तो इसका रिजल्ट 1 आएगा। ये पॉइंट टू बी नोटेड है। फिर से याद रखिएगा कि साइन थीटा कोसेक थीटा अपोजिट वाले अगर एक जगह हो जाएं, उनके बीच में प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है तो 1। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा कोसेक थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, तो 1 इंटू 1 इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू वाट 1। कितना छोटा RHS, समझ में आया? बोलिए। अच्छा, क्यों ऐसा होता है, आइए चेक कर लेते हैं। आखिर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इसकी वैल्यू 1 क्यों होती है? बिकॉज क्यों? क्योंकि साइन थीटा इंटू कोसेक को आप क्या लिखते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। तो बच्चों याद रखिएगा, साइन से साइन कट गया, आंसर क्या मिला 1। इन द सेम वे यू कैन आल्सो प्रूव cos theta into sec theta. Sec theta can be written as what? 1 upon cos theta. Cot theta can be written as 1 upon tan theta. आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे 12 पे। अब यहाँ से दूसरा सेक्शन चालू होगा, बस यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 1 to 11 have been solved. I request every student, every learner to concentrate their whole attention to clear all the rules and regulation, all the question related to class 6 to class 12th। इसके अलावा जिस बच्चे को NCERT पढ़ना हो तो मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है बच्चों, जिसका नाम है शाहीन PCME। शाहीन SHAHEEN शाहीन PCME। इस पे जाइएगा, इस पे आपको NCERT के सॉल्यूशन मिलेंगे। इसके अलावा जिन बच्चों को 9th 10th ठीक है पढ़ना हो, वो हमारा एक दूसरा चैनल है आतिफ PCME। वीडियो अगर अच्छी लगे बच्चों इसको लाइक करना, शेयर करना। अगर कहीं से भी आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ठीक है फील हो तो यू मस्ट राइट अ शॉर्ट कमेंट सो दैट आई मे रिपीट दैट क्वेश्चन, ठीक है, सो दैट यू मे ईजिली गेट। बच्चों अभी टाइम है, ठीक है, हम समझे बेल बज चुकी थी, इसलिए हम इस एक्सरसाइज को फिनिश करने जा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन सेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 57 डिग्री। तो बच्चों इससे पहले आपको एक टेबल माइंड में रखना पड़ेगा। साइन कॉस एंड टेन।
नहीं नहीं, ये ले रहा हूँ सबसे अच्छा। ना, वो बेकार है, टाइम लगेगा, क्या फ़ायदा। चलिए, तो यहाँ बच्चों साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। फिर इसके बाद बच्चों cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड या इनफाइनाइट कहते हैं। ठीक है, अब इसी का बच्चों साइन का उल्टा कोसेक होता है। ठीक है, साइन का उल्टा कोसेक, उसको भी लिख लीजिए, कोसेक। उसके बाद सेक और उसके बाद कॉट। चलिए, अब यहाँ बच्चों कोसेक 0, 0 का उल्टा 0 ही होता है। बोलिए, कोसेक 0, 0 का उल्टा 1/0, 0/0 क्या आएगा? 0। बोलिए, समझे बात? साइन 0 0 तो कोसेक 0 इनफाइनाइट। कोसेक 0 बच्चों, कोसेक 0 1/0, 0 का उल्टा 1/0, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये कैसे आया? साइन 0 0 है तो कोसेक 0 होता है बच्चों, कोसेक 0 इज इक्वल टू 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। उसके बाद है सेक कॉस 1, तो सेक 1 का उल्टा 1, 1/1। उसके बाद tan 0 तो कॉट का इन्फिनिटिव, नॉट डिफाइंड। क्या लिखेंगे इसको? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, डिफाइन नहीं किया जा सकता, वो भी नॉट डिफाइंड। उसके बाद है कोसेक 30 2 हो जाएगी, 1/2 का उल्टा 2 और ये √2। ठीक है, ये 2/√3 और बोलिए 1 का उल्टा 1। सेक पे आ जाइए, सेक 30 कितना है? 2/√3। उसके बाद ये √2 और ये 2। cos 0, cos 90 की वैल्यू
ज़ीरो होती है, ये नॉट डिफाइंड, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, या ये सिंबल दे दीजिएगा इस टाइप का। अब इसके बाद कॉट है, कॉट 30 √3 tan 45 1, और ये 1/√3 tan 90 की 1 इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, तो ये 0। क्लियर। चलिए ये सारी वैल्यूज़ को पुट करना है। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो एक फार्मूला है बच्चों, याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो अब थीटा चाहे जो भी हो, बस थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो ऊपर की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी बच्चों, 1, ऊपर क्या हो जाएगा 1/sec² 57 डिग्री। आपको मालूम है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर 57 को क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर 57 डिग्री, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब फिर उसके बाद क्या है, माइनस tan स्क्वायर 57 डिग्री, tan स्क्वायर 57 डिग्री। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर हो गया आपका RHS, ये क्या है आपका RHS। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है ना, cos A LHS, cos A इंटू tan A लाना है इक्वल टू sin A। तो बच्चों चलिए cos A tan A को लिख सकते हैं क्या, sin A अपॉन cos, ये फार्मूला है, cos A कैंसल, क्या मिलेगा, sin A इज इक्वल टू RHS। कन्फर्म। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पे, sin पावर 4A है 14, sin पावर 4A कोसेक स्क्वायर A प्लस cos पावर 4A इंटू सेक स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। चलिए LHS लास्ट है, sin पावर 4A इंटू कोसेक स्क्वायर A प्लस cos पावर 4A इंटू सेक स्क्वायर A इक्वल 1 लाना है। यहाँ पे देखिए बच्चों व्हाट विल बी कॉमन, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर A है, कॉमन नहीं, साइन स्क्वायर A है, कोसेक स्क्वायर A है। चलिए सिंप्लीफाई करिए, इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A इंटू साइन स्क्वायर A, और इधर है आपका क्या, कोसेक स्क्वायर A। तो बच्चों याद रखिएगा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। इन द सेम वे आप लिख सकते हैं, हाँ, कॉस स्क्वायर A, इसको भी कॉस स्क्वायर A लिख के सेक स्क्वायर A, तो इसमें भी आपका ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्यों, वाई, बिकॉज यहाँ पे देख लीजिएगा आखिर क्यों ऐसा होता है। आपको अभी बताया गया था कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1, जब अपोजिट वाले एक जगह हो जाएं, ठीक है, प्रोवाइडेड देयर इज ए सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बिटवीन देम, तो इट्स रिजल्ट विल बी 1। अब बच्चों क्या बचा है, यहाँ पे बचा है आपका इम्प्लाई दैट साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A ये इक्वल 1 होता है, यही आपका RHS है। कन्फर्म। अब क्वेश्चन नंबर 15, साइन स्क्वायर A कॉट स्क्वायर A प्लस दिस, चलिए LHS इज इक्वल टू साइन स्क्वायर A इंटू कॉट स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इंटू टेन स्क्वायर A इक्वल 1 लाना है बच्चों। चलिए बहुत इजी है, इम्प्लाई दैट साइन स्क्वायर A कॉट स्क्वायर A को क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉस स्क्वायर A अपॉन साइन स्क्वायर A। क्यों ऐसा, वाई,
because cot theta can be written as cos थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, और टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, तो फ़ायदा क्या होगा, ये उससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाइए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा आपका, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इम्प्लाई दैट यहाँ मिला आपको कॉस स्क्वायर ए, यहाँ मिला आपको साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यही आपका RHS था। अब क्वेश्चन नंबर ख़त्म। ठीक है, इस तरह से 10 से आई हैव फिनिश्ड दिस एक्सरसाइज, होपिंग यू आर वर्किंग वेरी हार्ड टू अचीव योर टारगेट, बिकॉज you have to work hard. Time once lost is never come again. Time which is lost forever. Now on the coming day we will start the next exercise or the previous exercise about which you have been searching, about which you feel some problem.